ایک خوبصورت جنگل میں رانو چڑیا رہتی تھی۔ رانو نے 2 انڈے دیے ہوئے تھے جسے دیکھ دیکھ کر رانو خوش ہوا کرتی تھی۔ میرے بچوں، مجھے تمہارے آنے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ رانو سارا دن اپنے انڈوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ یوں ہی کچھ دن گزر گئے اور آخر کار رانو کے انڈوں سے 2 ننھے بچے باہر آئے۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ چلو میں اپنے بچوں کے لیے دانا ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ اس طرح رانو چڑیا دانے کی تلاش میں باہر چلی جاتی ہے۔ راستے میں رانو چڑیا کو پیاس لگتی ہے تو وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے لگتی ہے۔ وہ جیسے ہی پانی پینے لگتی ہے تو ایک ظالم چیل آ جاتا ہے۔ مجھے مت کھاؤ، میرے گھر میں میرے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ میں دیکھ بھال کر لوں گا تمہارے بچوں کی۔ کبھی نہیں، میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ کبھی نہیں بتاؤں گی۔ تو پھر میرا کھانا بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس طرح ظالم چیل ننھی چڑیا کو کھا جاتا ہے۔ وہاں گھونسلے میں بچے اپنی ماں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ رانو کے پڑوس میں مٹو طوطا رہتا تھا۔ وہ بچوں کے پاس آتا ہے۔ کیا ہوا بچوں؟ انکل، ہماری مما صبح سے دانا لینے گئی ہیں، ابھی تک نہیں آئی۔ اچھا، میں تمہاری ماں کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ اور پھر مٹو طوطا رانو چڑیا کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے۔ وہ کافی دور جا کر دیکھتا ہے تو رانو چڑیا کا سر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب رانو اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ واپس آتا ہے۔ بچوں، صبر سے کام لو، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ لو، یہ پھل کھا لو۔ ہم اپنی ماں کے بنا کیسے رہیں گے؟ ہمت سے کام لو، تم دونوں بہت بہادر ہو، میں تمہارا دھیان رکھوں گا۔ رات کو دونوں بچے سو جاتے ہیں۔ مٹو طوطا ان کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ میں ان بچوں کا دھیان کیسے رکھوں گا؟ ان کا دھیان تو ایک مما چڑیا ہی رکھ سکتی ہے۔ اگلے دن مٹو طوطا دونوں بچوں کو لے کر دوسرے جنگل چلا جاتا ہے اور ایک چڑیا کے گھونسلے میں دونوں بچوں کو چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس گھونسلے میں پہلے سے ایک انڈا پڑا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد ایک چڑیا گھونسلے میں واپس آتی ہے۔ بچوں، کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمیں ہمارے انکل یہاں چھوڑ گئے ہیں، تمہاری مما کہاں ہے؟ مٹو انکل کہہ رہے تھے کہ ہماری مما اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آنٹی، آپ ہماری مما کو لے آئیں گی نا؟ چڑیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ دونوں بچے اناتھ ہیں اور کوئی ان کا خیال رکھنے والا نہیں، پر وہ اکیلے ان بچوں کو کیسے پالے؟ اس لیے وہ اگلے دن بچوں کو دوبارہ چھوڑ کر آنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ رات کو سب سو جاتے ہیں تو مٹو طوطا چپکے سے گھونسلے میں پھل رکھ دیتا ہے تاکہ بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ صبح جب مما چڑیا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پھل دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ مٹو طوطا نے ہی رکھے ہوں گے اور اس طرح وہ ان بچوں کو پالنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ چڑیا کے انڈے سے ایک پیارا سا چڑیا باہر آتا ہے۔ مما، یہ ہمارا بھائی ہے۔ ہاں بچوں، تم دونوں اپنے بھائی کا دھیان رکھنا، میں دانا تلاش کرنے جا رہی ہوں۔ اس طرح دن گزرتے جاتے ہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ چڑیا کا بیٹا ان دونوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ رک جاؤ ٹونا، اکیلے مت جاؤ، تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ اور یوں ٹونا ان کی کوئی بات نہیں مانتا۔ دونوں بچے اپنی ماں کا بہت دھیان رکھتے ہیں۔ بچوں، تم دونوں میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ مما، آپ نے ہمارا ساتھ تھام دیا جب ہمارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کا ایسا ہی خیال رکھیں۔ ایک دن پڑوس کا ایک بچہ چڑیا کے پاس آتا ہے۔ آنٹی، ٹونا کو وہاں ایک ظالم چیل نے پکڑ رکھا ہے۔ ہائے، میں مر گئی، میرا بچہ،
कितनी दफ़ा मना किया था कि इस तरफ मत जाओ, पर वो कहाँ किसी की सुनता है। अब मैं क्या करूँगी। मम्मा आप फिक्र ना करें, आज मैं इस झील से निपटूंगा। आपको कोई दुख नहीं दे सकता। इस झील ने हमारी माँ की भी जान ली थी। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और यूँ जग्गू वहाँ से चला जाता है। ए झील, छोड़ मेरे भाई को। भाई मुझे बचाओ, मैं इसकी खुराक नहीं बनना चाहता। छोड़ दूंगा, पर बदले में मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है, मुझे खा लेना। इस तरह चील ठूना को छोड़ देता है और जग्गू चील के पास जाकर इस पर लाठी से हमला करता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है और आखिरकार चील मर जाता है। जग्गू भी काफ़ी ज़ख्मी होता है। सब वहाँ आ जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मैं हमेशा तुम दोनों को बुरा भला कहता रहा, पर आज तुमने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई। और यूँ सब पक्षी खुशी खुशी रहते हैं। मीनू चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो कई दिनों से बहुत बीमार थी, इसलिए वो बरसात आने से पहले अपने लिए पक्का घर नहीं बना सकी। मामा आप क्यों उदास हो? बेटी, बरसात का मौसम आने वाला है और मैंने सेहत की खराबी की वजह से पक्का घर नहीं बनाया। अब हम क्या करेंगे? मामा मैं आपकी मदद करूं, मुझे तो घर बनाना आता है। चलो ठीक है। माँ बेटी मेहनत करके जैसे तैसे घर बना लेते हैं, जो ज़्यादा मज़बूत नहीं होता पर गुजारा होता है। आधी रात हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। मामा बारिश तो बहुत तेज़ है, शुक्र है हमने घर बना लिया, वरना इस बरसात के मौसम में हम कहाँ जाते। बेटी, ऊपर वाला हर किसी की मदद करता है, वो किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। गोरी कौवी मीनू चिड़िया का घर देखकर जलने लगती है। कालू जी, ये कैसे हो गया? मैंने तो सोचा था कि मीनू चिड़िया इस दफ़ा बरसात में भीगती रहेगी, पर इसने तो कम अरसे में घर बना लिया। गौरी, तुम मीनू से जलती क्यों हो? रहने दो, जैसे रहते हैं तो रहने दो। तुम मेरे पति होकर इनकी तरफदारी कर रहे हो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। गौरी, तुम मेरी खूबसूरत पत्नी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है तो मीनू चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में चली जाती है। तो कालू कौवा मौके का फ़ायदा उठाकर मीनू चिड़िया के घर को आग लगा देता है और मीनू का घर जलकर राख हो जाता है। जब मीनू चिड़िया वापस आती है तो अपने घर को जला हुआ पाकर रोने लग जाती है। अरे ये किसने किया? इतनी मुश्किल से तो घर बनाया था और किसी ने इसे जला दिया। अब हम माँ बेटी कहाँ क्या करेंगे? और वो दोनों बहुत उदास होते हैं। वहाँ गोरी कौवी ये सब देखकर खुश हो जाती है। अब हुई ना बात, तुम मेरे सबसे अच्छे पति हो, तुमने वो किया जो मैं चाहती थी। आज बरसात होगी और देखना मीनू चिड़िया इधर उधर भागेगी। शाम होते ही बरसात शुरू हो जाती है और बादल गरजते हैं। माँ, मुझे सर्दी लग रही है। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। तुम्हारे पिता आज होते तो हम ऐसी हालत में कभी नहीं होते। मीनू चिड़िया मदद मांगने पहले तोते के पास चली जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। तोती बहन, हमारी मदद करो। ये देखो, अब हमसे मदद मांगने आ गई है। तोती दरवाज़ा नहीं खोलती।
मीनू बहन, इन्हें तेज बुखार है और डॉक्टर ने इन्हें तमाम पक्षियों से दूर रहने को कहा है। मीनू चिड़िया इसके बाद कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू जी, हमें आज रात के लिए पनाह दे दें, कल सुबह होते ही हम अपना घर बना लेंगे। मीनू चिड़िया, बहुत करती थी ना तुम, अब ज़रा मैं भी तुम्हारी अकड़ देखूं। वो दोनों जंगल के बीच एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और रोती है कि इतने में पेड़ आवाज़ लगाता है, ए मीनू चिड़िया, मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रहा हूँ कि तुम रो रही हो। और इस तरह मीनू चिड़िया सारा किस्सा सुना देती है। आ जाओ, इस छेद में जाकर बैठ जाओ, यहाँ तुम बरसात का मौसम ख़त्म होने तक रह सकते हो और तुम लोगों को भोजन भी अंदर मिल जाया करेगा। ये सुनकर मीनू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों खेत में चले जाते हैं और वहाँ रहते हैं। अगली सुबह मीनू चिड़िया पानी पीने नदी जा रही होती है कि रास्ते में कालू कौवा और गौरी कौवी मिल जाते हैं। क्यों मीनू, अब कहाँ रह रही हो तुम? क्यों गौरी, तुम्हें क्या लगता है कि जिसका कोई नहीं होता इसका खुदा नहीं होता क्या? मेरे खुदा ने मेरा बंदोबस्त कर दिया है। और इस तरह मीनू चिड़िया गौरी कौवी को सब बता देती है और वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये क्या हो गया? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम्हें दोबारा कुछ करना पड़ेगा। गौरी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस तरह कालू कौवा इस पेड़ को आग लगा देता है कि कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और आग बुझ जाती है। मीनू चिड़िया, तुम परेशान ना हो, मैं इस कालू को सबक सिखा कर रहूँगा। तुम परेशान ना हो और जाकर आराम करो। अगले रोज़ कालू दोबारा पेड़ के करीब आता है तो पेड़ कालू कौवे की डंडे से पिटाई करता है और कालू ज़ख्मी होकर वहाँ से चला जाता है। और इस तरह मीनू चिड़िया अपनी बेटी के साथ इस पेड़ में हंसी खुशी रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।